So we'll start. Yes, sir, please. Good morning to all of you, or say good noon, whatever. In the divine presence of the Almighty and equally divine presence of my Guru Maharaj, I welcome you all in the session of stress management. अभी बंगाल और 4 और स्टेट्स में इलेक्शंस हुए. You might have seen all the results and what happened in the elections. We are not concerned with that. What I am concerned with, वहाँ के जो इलेक्शन कैंपेन की एक वीडियो में देख रहा था. All of you might have seen some videos on elections. तो बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी के लोग कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस ने 10 साल तक आपका खून चूसा है, अब हमें भी मौका दीजिए. What I mean to say is that since yesterday there have been so many speakers who have shared their knowledge with you. अब मुझे भी मौका दीजिए, क्योंकि I think laughter is the best stress buster. I don't know, बहुत सारे speakers knowledgeable लोग थे और definitely जो जिनको आप बुलाते हैं वो विद्वान लोग होते हैं, and they might have told you so many techniques, but my technique is a bit different because I belong to Haryana. हरियाणा वालों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है. Last week Preeti madam called me and she said that we want a lecture on stress management, and I said okay ma'am, we'll do it, and I prepared for that, which I had delivered this lecture earlier also, but once you get the invitation you have to refresh yourself, and then I did that. So I refreshed everything, but suddenly you might have heard and seen in your life also कि जब भी आप गोल पोस्ट के पास पहुंचते हैं गोल के लिए, people change the goal post, and same thing Preeti madam did. She changed the goal post. She said, sir, आपको only in workplace, stress in workplace and how to handle that stress in the workplace इस पे बोलना है. I said okay, fine. So as I said, I belong to Haryana, and so we don't take much stress. है ना? हम मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Yes, you are audible. Okay. Somebody was looking here and there, so I thought कि वो उनको सुन नहीं रहा होगा. Okay. So आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस लेते नहीं. As I told you कि एक हमारे यहाँ बसों में, पृथ्वी में, you might have seen, you belong to राजस्थान, and राजस्थान की बसों में भी ऐसा ही, नॉर्थ इंडिया में सब जगह होता है. People start smoking in the buses, local buses, है ना? हमारे यहाँ हरियाणा में भी होता है. तो एक आदमी बीड़ी पी रहा था और उसमें एक जेंटलमैन, एक गांव के एक व्यक्ति थे, वो जा रहे थे और एक स्पार्क उड़ के, एक पतंगा उड़ के उनकी धोती पे गिर गया और धोती उनकी जल गई. बट ही डिड नॉट से एनीथिंग. वो बोलेंगे, चुपचाप रहे, कोई स्ट्रेस नहीं. तो जो आदमी बीड़ी पी रहा था उसने भी थॉट कि यार इसने कुछ नहीं कहा है, सो ही इज अ जेंटलमैन, I should talk to him. वो उसके पास गया. I don't know how many of you understand हरियाणवी. तो उसके पास गया और जाके उसने कहा कि ताऊ जी आप कौन से गांव से हैं? तो उसने कहा कि क्यों, उसको भी फूकेगा? तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग स्ट्रेस की सिचुएशन को भी बड़ा
लाफ्टर में लेते हैं, हंसी मजाक से लेते हैं। और हमारे यहाँ सब लोग ये ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आध आदमी होता है, हरियाणा वाला सब सब एक जैसे हैं, तो सब हंसी मजाक करते हैं। तो मैंने एक आदमी से, अभी मैं जब ये बात हुई प्रीति मैडम से, तो आई वॉज टॉकिंग टू सम ऑफ द पर्सन्स कि आप लोग हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस। सो आई आस्क्ड वन पर्सन, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? He said, I go to temple. I said, very good. Then you go and prayer there? He said, no. I said, what do you do then? So he said, I mix up all the shoes of all the people there. सबके सबके जूते मिक्सअप कर देता हूँ। और जब वो लोग आके स्ट्रेस में देखते हैं कि मेरा जूता नहीं है, तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। So there are people like that also. So anyway, in fact, आजकल हर आदमी स्ट्रेस्ड है। Everybody is in tension, you know. और टेंशन में पहले तो ये शब्द ही नहीं होते थे। I don't know, when we were studying in school or college, टेंशन शब्द नहीं था हमारे यहाँ। पहले बात तो अंग्रेजी ही नहीं थी, तो अंग्रेजी के साथ ही टेंशन आई है ना। अदरवाइज देयर वाज नो टेंशन, देयर वाज नो स्ट्रेस। वी नेवर फेल्ट। डिड यू फील एनी स्ट्रेस इन द स्कूल और कॉलेज? आई डोंट थिंक सो, है ना। So after coming to office, then you started listening stress and all that. So everybody is stress, और stress में हम लोग इतनी जल्दी आ जाते हैं। आप सुबह सुबह you are going for morning walk, right? और you are going in a market से, morning walk में तो चलो सब good morning कर देते हैं। आप मार्केट में जा रहे हैं और कोई अननोन आदमी मिल जाता है, आप उसको कहिए नमस्कार जी कैसे हैं, you just say and go, and whole day he will be in stress। ये कौन था यार, क्यों कह के गया, अरे क्या कह दिया यार, नमस्ते ही तो किए। बट स्टिल वी आर इन स्ट्रेस बिकॉज आजकल बिना बात कोई किसी को नमस्ते भी नहीं करता। डू यू एग्री विद मी और नॉट? सो व्हाट आई मीन टू से कि जस्ट स्माइल। एक्चुअली स्ट्रेस इज नॉट बैड। हम लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वी क्रिएटेड a bubble around it, you know, of stress. Stress is not bad at all. Only thing, our way of handling it made it bad, made it rather worse, you know. Because I always say stress does not come by amount of load you carry. Please note it down. Stress does not come by the amount of load you carry. Stress comes by the way you carry it. क्योंकि लोड तो सब पे है, एवरीबडी इज हैविंग स्ट्रेस। और अगर स्ट्रेस नहीं हो, देखिए, a coal under stress becomes a diamond. Somebody asked me that what about only one coal become diamond? What about other coals? I said they became dust. Anyway, pardon? A coal, koila. Coal under stress becomes a diamond. Isn't it? Sir, I just have one small question before we go deeper. Is irritation and stress are the same or it's two different things? Because some people we find them to be irritating, but again they are the cause of stress at a longer run. Like maybe a colleague or subordinate with whom you keep getting irritated. Yeah. That's right, madam. That's right. That's a kind of stress, you know. That's also a kind of stress because irritation. Anyway, हम लोग उस पर बाद में आए मैडम। Okay, sir. I just wanted to put my. Okay. We'll talk about it, right? So, देखिए, again, I come to the same point that stress is not bad at all, because
when a mother gives birth to a child, she puts all her might and she is under tremendous stress, right? So, and she puts her powers and this and to give birth to a baby, and when the baby suddenly comes in a strange world, it starts crying under stress. Sometimes we also start crying under stress. No, that's also good. Crying is good. Crying is also not bad. जैसे स्ट्रेस अच्छा है, ऐसे रोना भी कभी कभी अच्छा होता है. Why, because it is good for the baby. Why? Because there are many holes in heart and body which get closed by crying, and it gives strength to the baby. I was talking to a doctor who told me I'm a literary person. मैं तो literature का आदमी हूँ. मेरा because I gathered some information from some doctors and concerned people. Since I'm a motivational speaker, so I had to speak on these topics. So we read a lot of books and interviewed so many people also. So those holes, they get closed by crying, which is good for strength. There is a lot of water in the lungs of the baby, which is rinsed out by crying to make the baby strong. So same way, pressure is there to make us strong. You are from the field of aviation. आप तो एविएशन के लोग है ना. एयरक्राफ्ट में भी जब जाते हैं तो जैसे कि जब प्रेशर कम हो जाएगा तो मास्क नीचे आ जाएगा, है ना. कुछ लोगों के तो सुनते ही प्रेशर हो जाता है कि प्रेशर कम भी हो जाएगा क्या. some people get stressed by that. So you understand more than me the effect of atmospheric pressure on human body. I was watching a video कि आपको मालूम है, you might be knowing कि हमारा जो blood pressure is in proportion to the atmospheric pressure. अगर atmospheric pressure ना हो, आप अगर space में चले जाएं, atmospheric pressure ना हो, तो आपकी पूरी बॉडी बैलून की तरफ फूल के फट जाए, बस्ट हो जाए. सो प्रेशर इज रिक्वायर्ड. तो प्रेशर जो है वो कई जगह बहुत जरूरी होता है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस. वी लिव इन 21st century. Our life starts with daily news which are negative, which are stressful. हर रोज किसी ने कुछ ना कुछ न्यूज आपको पेपर खोलते ही ऐसे मिल जाती है जो नेगेटिव होती. I always say कि this is an age, in the age in which we are living, this is an age of guided missiles and misguided man. This is an age of guided missiles and misguided man. Because literate people caused more harm to the society in comparison to the illiterate people. आप देखिए, you might have heard, you might have seen that illiterate people एक fraud करता है, it will be say 20,000, 50,000, 1 lakh, 2 lakh, etc. But when a literate person does a fraud, it will be 1 lakh crore, 15,000 crores, etc., etc. Am I right or not? और ये लोग, they are graduates and postgraduates from different universities of the world. They are highly qualified, right? आप देखिए, the people who make armaments, they are very highly qualified people. But the thing is, their heart and mind are not in right culture. Their heart and mind
with which principle and thought process they make them like that. So एक छोटा सा एग्जाम्पल, आई गिव यू सम सिंपल एग्जाम्पल. एक बिकॉज वी आर प्रोडक्शन ऑफ आवर थॉट्स, वी बिकम वट एवर वी थिंक. जापान में एक कोई मछली होती है, एक देयर इज अ कोई फिश इन जापान. इट इज कॉल्ड जापानीज क्रैप ऑल्सो. एंड दैट कोई फिश, if you keep in a bowl, it will increase after birth. It will increase only 2-3 inches. If you put it in a say tub, like, it will increase up to 6-7 feet, 6-7 inches. And if you leave it in a pond, अगर उसको आप तालाब में छोड़ दें, तो it will grow up to 3 feet. So it depends on the surrounding and company in which you are being growing. You are being grown up. Because company plays a very important role in your progress. Remember, you are the average of the type of the people you associate with. You are the average of the type of the people you associate with. We are born to think, achieve, and create big. You might have heard one thing, that sow a thought and reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. यानी कि एक थॉट हमारा, इट कैन चेंज आवर डेस्टिनी, हमारा भाग्य बदल सकता है. बिकॉज हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज हिस्ट्री ऑफ थॉट्स. एक थॉट आया, स्टेट बना, एक गांव बना, उसके बाद सोसाइटी बनी, परिवार बने, सोसाइटी बनी, देश बने. इस तरह से, that's why I say कि history of world is history of thoughts. But the important thing is कि हमारे विचार high thinking हो, सीधे हो, and we should have ethical thinking. One thing I tell you, we have 19, अभी एक genetic research, genetic science ने एक research की है, that 99% we have 99% similarity with the chimpanzee. Chimpanzee के साथ हमारी 99% genetically we are same. The 1% difference is that we can collect information, we can store information, we can transform information into knowledge, and we can transform knowledge into wisdom. लेकिन आप ये देखिए कि जितनी नॉलेज दुनिया में है, the knowledge we have in the world, only 1% of that have not been transferred into wisdom. Do we do that? हम लोगों ने 1% भी ट्रांसफर नहीं की है, ट्रांसफॉर्म नहीं की है. और 1% ट्रांसफॉर्म नहीं की है, तो जब हम नहीं करते हैं तो व्हाट वी रिमेन लाइक चिंपैंजीज. हम नॉलेज तक तो आते हैं, विजडम में ट्रांसफॉर्म नहीं करते. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज that we should have high thinking and ethical thinking. I tell you one thing. I was posted in Nagpur for some time. NIT नागपुर के बारे में, VNIT नागपुर के बारे में आपने सुना होगा. There is VNIT, विश्वेश्वरैया जी ने उसको एस्टेब्लिश किया था. And I used to teach some classes there. तो वहाँ के जो डीन थे, he wrote a book on विश्वेश्वरैया,
विश्वश्रेयसी. तो ही presented one book to me also. I was reading that book. तो मैं उस बुक को पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि विश्वेश्वरैया जी को गवर्नमेंट की तरफ से all facilities, bungalow and light and everything was free. So one day one person went to meet him. एक आदमी उनसे मिलने गया, तो वो काम कर रहे थे, lights were on. After finishing his work, he switched off the light and he lighted a lamp. तो उस आदमी ने पूछा, why did you light this lamp? Why did you light this lamp now? You have light, you have electricity in your house. So he said that electricity has been given by the government. When I was doing the government work, I was using this. Now I am doing my work, so I will use my lamp. So this is ethical thinking. And truth, especially in our workplace also, and in our life, whole life, truth. सच को मैंने, देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता. तो जब आप सच का साथ देते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को कम कर लेते हैं. गांधी जी के बारे में कितने ही एग्जाम्पल्स हैं ऐसे. रिमेंबर वन थिंग, lie has a big maintenance cost. Lie has a big maintenance cost. आपकी फिजिकल एनर्जी जाती है, मेंटल एनर्जी जाती है, कभी कभी आपका पैसा भी जाता है उसमें. Why do we become unethical? Because हम लोग पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. अगर पैसे के पीछे न भागे, देखिए, हम लोग, अर्निंग इज समथिंग एल्स एंड अर्निंग फ्रॉम अनएथिकल वेज इज समथिंग एल्स. जब मैं कहता हूं कि पैसे के पीछे न भागे, तो इसका मतलब है वी शुड नॉट यूज अनएथिकल वेज टू अर्न मनी. द मनी इन योर बैंक व्हेन यू डाई इज द पेमेंट ऑफ द वर्क यू शुड हैव नॉट डन. आपको मालूम है that money cannot give you anything, money cannot give you happiness. Aditya Birla died at the age of 51. Aditya Birla died at the age of 51 by cancer, because of cancer. आप समझते हैं कि उसके पास पैसे की कमी थी? No, he had everything available for him. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. You know, you might have heard about Michael Jackson. Michael Jackson used to sleep on a bed of $94,000. $94,000 का माइकल जैक्सन का बेड था जिस पर वो सोता था. लेकिन he used to take at least 10 sleeping pills and used to sleep for 2 hours. So इसलिए आपके पास कितना भी पैसा है, कुछ भी है, but if you are going for unethical practices, it will not spare you. आपकी कंपनी का नाम सत्यम है, but आपकी practices असत्य है. So what will happen? You know it very well. आपकी कंपनी का नाम भले ही सत्यम हो, लेकिन आपके practices unethical है. Even if you are king of the sky, but you will have to leave the country, that also on diplomatic passport. And now, what is happening, you know it very well. So he is the king of the sky. आप बहुत सारे लोगों के सहारा हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का सहारा हो सकते हैं, उनको घर दे सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं. But if you go for unethical practices, आप तिहाड़ में बेसहारा हो सकते हैं. See, the biggest mistake by 21st century man is that he wants to grow as a professional
and doesn't want to grow as a human being. So remember one thing, then I will come to my PPT. That world is round, it has no corners. World is round, it has no corners to hide your wrongs. And one more thing I would like to tell you, that no pillow is as soft as the clear conscience. एक आपकी कॉन्शियस अगर क्लियर है तो आप ऐसा कोई पिलो नहीं है जो आपको ओके ना बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको बता दी गई होंगी. सो आई विल गो फास्ट. मैं जल्दी जल्दी उसको करने की कोशिश करूँगा. मैडम कह रही थी कि 10 मिनट पहले शुरू करना है. व्हाट डिड शी से? सम नेक्स्ट स्पीकर इज कमिंग अर्लियर और व्हाट? नो इश्यू सर. आपका जो टाइम है उससे 5 to 10 मिनट्स आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं सर. लंच आवर थोड़ा हम कम करेंगे सर. जो 30 मिनट का है उसको हम थोड़ा 20 मिनट का करेंगे, बिकॉज थर्ड जो फैकल्टी है वो थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे और टाइम पे बिल्कुल खत्म करेंगे. दैट्स राइट, बिकॉज ही हैज टू अटेंड मीटिंग. बट व्हाट अबाउट माय लंच मैम? इट इज वर्चुअल सर. इट इज वर्चुअल सर. नहीं मुझे भी तो खाना है ना. एनीवे नहीं ओके. नहीं सर, तो आपका अपने टाइम पे आप खत्म कर लीजिएगा सर. ठीक है चलिए. एनीवे सो एज आई सेड कि थोड़ा जल्दी मैं इसको क्योंकि एक सीरीज है, सीरीज में ही है ये सब, तो उसको थोड़ा टच करके हम लोग सीधे फिर अपने टॉपिक पे आ जाएंगे. एक शायर ने बहुत बढ़िया कहा है कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है. दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि शाम हुई हो और सुबह न हुई हो. एनीवे सो अब तक आपको स्ट्रेस की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल गई होंगी. बहुत सारे स्पीकर्स आपके आप अटेंड कर चुके हैं और उनकी सबकी इंफॉर्मेशंस आपके पास होंगी. सोर्सेस क्या है हमारे स्ट्रेस के? देखिए, मनी, वर्क, फैमिली, हेल्थ. हम इनमें से मुझे कहा गया है कि मैं सिर्फ वर्क को टच करूं, लेकिन वर्क के साथ थोड़ा मनी भी आ ही जाता है. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस? कॉग्निटिव सिम्टम्स जो होते हैं, दैट आपको मेमोरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगती है, देन नेगेटिविटी कम्स एंड एंजाइटी कम्स इन योर माइंड. देन अदर स्पीकर्स माइट हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. इमोशनल सिम्टम होता है दैट सम पीपल गो इन डिप्रेशन, मूड चेंज ऑफ मूड होता है, कभी मूड खराब हो जाता है. देन पीपल फील लोनलीनेस ऑल्सो. और लोनलीनेस का मतलब ये नहीं है कि whenever they are alone, so sometimes in the family also they feel loneliness. So this is also a symptom of stress. And physical aches and pains, nausea and palpitation of heart, these are symptoms of stress. And behavioral eating problems, sleeping, procrastination, smoking, some people start. So these are symptoms of stress. Then causes, memories, whatever we take through our senses, that become content of our mind. जो हम अपने सेंसेस से ग्रास्प करते हैं, that remains in our mind. हमारे माइंड में बहुत जीबी की हार्ड डिस्क है, उसमें ये इकट्ठी हो जाती हैं सारी चीज़ें.
and thoughts. We have been given this fantastic equipment without user's manual. Our mind is like that. देखिए ब्रेन के बारे में आप अगर आप if you talk about your physique, your body, कितनी ब्रांचेस, देर आर सो मेनी मेडिकल ब्रांचेस फॉर योर बॉडी, चाहे वो हार्ट के लिए है, चाहे ENT के लिए है, आपकी आइज के लिए है, फॉर एवरी पार्ट. बट फॉर ब्रेन ओनली साइकेट्री एंड साइकोलॉजी. There are two things because they are looking. It is like that. The scientists about brain, how much they know about brain, like they are looking for a black cat in a black room, for a black cat in a black room which is not there. So our mind is a very strange thing, but we have been given this fantastic equipment without user's manual. We don't know how to use it. Every person uses it differently. हम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि एक ही कंडीशन में, in one condition, same condition, two people get different reactions. It is because of reaction, our reactions. Stress कोई चीज नहीं है. We create stress. We create neural pathways. If they are negative pathways, then they create stress. And next cause is company you keep. As I earlier mentioned, you are the average of the type of the people you associate with. Then now we come to the main point, that causes of stress at workplace. एक आदमी से अभी मैं एक दिन पूछ रहा था कि जब से प्रीति मैडम से बात हुई मेरी, तो I started talking to people what kind of stress they feel at workplace. So I asked one person that do you feel stress in your job? He said yes. I said what kind of stress? He said job itself is a stress. Job ही अपने आप में stress है. I noted that. So one by one we'll go. Workload. The first thing is workload. In fact, again I will say the same thing. This is not the amount of the load you carry, it is the way you carry it that creates stress. Workload सबके पास होता है. You have to work for 8 hours, sometimes more than that, of course. But if you plan your things, then we'll talk about that in the handling portion. Workload एक ऐसा जो स्ट्रेस कॉज करता है. बहुत से लोगों के पास ऐसा है जिनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है. आई अंडरस्टैंड. आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो मेनी सिचुएशंस जहाँ इतना स्ट्रेस हुआ है कि आप पूछिए मत. इट वाज रियली डिफिकल्ट. एज मैडम told you that I was working as a senior research officer in Committee of Parliament. I had to work with 10 members of Parliament, and sometimes this situation used to be so stressful कि आम आदमी उसमें सोच के तो पागल हो जाए. अगर आप कहेंगे तो I'll share 1 or 2 situations with you. जब आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, everything is now spoiled, and then we have to do something. So workload is one of the causes of stress at workplace. Second is deadlines. They are already called deadlines. So because by the time people reach there, they are almost dead. So that's why they are called deadlines. So अगर वो deadline ना हो तो शायद हम लोगों को इतना stress ना हो. लेकिन as we are told that these are deadlines and you have to finish your work within this period, so it creates stress in some people, because some people they don't care about deadlines, right? And especially in government sector, deadlines are always jumped.
उस लाइन के ऊपर से लोग जंप कर जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी स्कीम्स होती हैं इतने दिन के लिए आपको करना है, उसके बाद फिर 6 महीने फिर बढ़ा दिए जाते हैं। इट हैपेंस लाइक दिस। बट in corporate sector and where most of the people are serious in their job, I know that. So deadlines is a again cause of stress for them. Next is favoritism. I don't know you have experienced it or not, but at some level, at some time, everybody might have seen it. That there is favoritism in offices, or especially I was talking to some corporate people. They said, if you are a friend of your manager, so you get promotions fast, you get more raises. वहाँ देखिए हमारी तरह नहीं होता कि इतने इंक्रीमेंट 3% इंक्रीमेंट मिलेगी तो 3% इंक्रीमेंट मिलेगी. इट इज नॉट लाइक गवर्नमेंट सेक्टर. They can get 20%, they can get 5% also. So somebody gets 5%, somebody gets 20%, and the person who is working more may get less salary, may not get promotion, may get more work. Okay, when you do more work, there is a saying that reward of more work, reward of hard work is more work. And on icing on the cake, when favoritism starts, that becomes very painful and very stressful. That people come under stress when they find that there is favoritism in our office. Next is internal politics. इंटरनल पॉलिटिक्स हमारे यहाँ देश में पॉलिटिक्स तो होती है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स हमारे यहाँ भी होती है. इसको आगे नहीं जाने देना है, इसको ये नहीं करना है. यूनियन के इलेक्शंस हो रहे हैं, अब की बार तो ये इलेक्शन लड़ रहा है, इसको तो बिल्कुल ही जीतने नहीं देना है. यू नो इट वेरी वेल. इस तरह की चीज़ें इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती हैं. और कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आपके बाजू वाला जो केबिन है, ही इज गोइंग टू द boss cabin, and somebody comes and tells you, अरे आज तो वो 3 बार बॉस के केबिन में गया है. You have to find out. Some politics is going on, etc. And yes, there are things when internal politics goes on. Groups are there, politics is there, and sometimes it is really stressful. Then next one is कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ मेरा ये है, when I talk to some people, how communication becomes stress. In corporate offices especially, they said that for example, you have made some mistake, or there is some drawback in your work, and you have a Japanese manager, so he will tell your mistake very politely and try to correct it and try to suggest you that how to correct it. But if the manager is French or German, so he will tell you in harsh ways. When communication, when you communicate to your subordinate in a harsh way, or you are communicated something by your boss in a harsh way, it becomes stressful. Because we are all grown-ups, we are responsible people, we do our duties very faithfully. So if somebody scolds us, somebody uses harsh words, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना. बिकॉज घर में तो हम लोग ऑनर्स होते हैं, ऑफिस से निकलते ही हम लोग अपने ऑनर्स होते हैं, हु कैन से एनीथिंग टू अस. तो इसलिए वो जो कम्युनिकेशन है वो अगर प्रॉपर ना हो तो हम लोगों के लिए कई बार वो स्ट्रेसफुल हो जाता है.
The next one is cultural differences. जब आपने देखा होगा, I have been a professor for 21 years, and I was sent on transfer in every nook and corner of the country. So I have seen कि कल्चर का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. मैं गोवा में रहा, बंगाल में ख़ास तौर पर इसमें ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में भी होता है. यू माइट हैव सीन मराठी मानुस एंड ऑल दैट, और बहुत सारी चीज़ें. आई डोंट से एवरीबडी इज सेम, बट मेरा मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट या वहाँ के लोगों को के बारे में कुछ अपनी ओपिनियन देना नहीं. मेरा मतलब सिर्फ ये बताना है कि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं. मैं ये नहीं कहता कि वहीं होते हैं, यहाँ दिल्ली में भी होते हैं. अगर जो लोग बाहर से आए होंगे उनको थोड़ा बहुत कभी कभी लगता होगा. यहाँ कुछ लोगों, मैंने देखा है कि कुछ लोगों को किराए में मकान नहीं मिलता, who have come from particular states or particular places. So I don't want to go in detail of that कि वो कौन से प्रदेश से आए हैं, कौन से प्रदेश से नहीं आए हैं, कौन सी जगह से. That is not our topic. Our topic is that cultural differences become stress at workplace. कई बार आपने देखा होगा कि there become groups and politics of different cultural people belonging to different cultures. तो इस तरह के differences भी ऑफिस में अक्सर देखने को मिल जाते हैं. Then competitive behavior. Competitive behavior say I mean to say that suppose you are already burdened. There are two persons, both are burdened with the work. They have their quota of work. Suppose the administration wants one of them to do some extra work, and he says, "No, sir, I cannot do it. No, madam, I cannot do it." Then somebody else will do it. Somebody else will do it, and the bosses will say that this man is competitive, this man is good. So that competitive behavior, मैं ये ज़्यादा कर दूँ, मैं उसको ज़्यादा कर दूँ, that brings stress in our life. क्योंकि हम लोग कई बार उतना करने के कैपेबल नहीं होते हैं, but we take too much on our plate, which is difficult to finish. Then this competitive behavior becomes stress. तो उसमें हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दिक्कत होती है. तो again that's not a good thing. Then वर्क लाइफ बैलेंस. हम लोग इनफैक्ट घर का काम ऑफिस में करते हैं और ऑफिस का काम घर में करते हैं. हम में से बहुत सारे लोग, मैंने देखा, क्योंकि मैं भी तो सरकारी नौकरी में रहा हूँ, तो आई हैव सीन पीपल टेकिंग फाइल्स विद देम, और घर की प्रॉब्लम्स ऑफिस में ले आते हैं और ऑफिस की प्रॉब्लम्स घर में ले जाते हैं. एंड on both the places they are under stress. So that is a very difficult situation, because sometimes your deadlines don't permit you to leave the files in your office. क्योंकि आपको I have seen our chairman was home minister. तो होम मिनिस्टर से मीटिंग होती थी, तो ये होता था कि कल सुबह 8 बजे मीटिंग है या कल सुबह 9 बजे मीटिंग है, एंड होम मिनिस्टर वांट्स ऑल दीज फाइल्स. तो वो सब फाइल जो काम करना होता था या तो ऑफिस में बैठ के करते थे या घर ले जाकर करते थे, तो लोग करते ही थे. सो वर्क लाइफ बैलेंस जो है, दैट इज अगेन इज अ स्ट्रेस. वर्क टाइमिंग्स. I was talking to प्रीति मैडम also, जहाँ जैसे आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में भी अगर शिफ्ट्स में काम हो रहा, इफ यू आर दे आर वर्किंग इन शिफ्ट्स, तो कुछ लोगों को वो शिफ्ट सूट नहीं करती है. एक तो शिफ्ट सूट नहीं करती, दूसरा आपका जो मेटाबॉलिक
क्लॉक है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आपके कल मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि हर चीज़ का हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हर चीज़ का टाइम सेट कर लेता है। बिकॉज आई हैव गॉट 2 स्टंट्स इन माय हार्ट। तो मैं कल पढ़ रहा था कि रात को कोलेस्ट्रॉल बनता है, जब हम सोते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनता है, इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो मेडिसिन है वो आप रात को खाइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन जब आपके वो मान लीजिए आप मेरी तरह कोई हार्ट पेशेंट है, उसको रात को सोने से पहले वो दवाई खानी और डॉक्टर ने कहा रात को खानी, अब वो रात को खाए और दिन में सोए तो उसको स्ट्रेस भी रहेगा और वो दवाई भी इफेक्ट नहीं कर रही। सो वर्क टाइमिंग कई बार आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली में या दूसरे बड़े शहरों में देखा होगा आपने, सबर्ब्स में लोग रहते हैं, दे हैव टू ट्रैवल। अगर ऐसे टाइमिंग्स पे उनकी ड्यूटीज़ हैं कि उनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है या दूसरी कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो अगेन देन इट बिकम्स अ स्ट्रेस फॉर देम। तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, इट कॉजेज स्ट्रेस फॉर देम। देन विजिलेंस, ये विजिलेंस ऐसा वर्ड है जो हर एम्प्लॉय के मन में स्ट्रेस अपने आप ही पैदा कर देता है। विजिलेंस वाले ये कर देंगे, विजिलेंस वाले वो कर देंगे, दिस विल हैपन। और बिकॉज देन द ऑफिसर्स ऑल्सो हेजिटेट टू टेक डिसीजंस। कल को विजिलेंस अगर की इंक्वायरी आ गई तो क्या होगा। तो वो एक जब आप काम करने लगते हैं एंड दिस इज अ वर्क ऑफ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको डर लगने लगता है कि मान लीजिए आपको आप प्रोक्योरमेंट में हैं, आपने कोई बहुत बड़ा खर्च करना है, कुछ बहुत सारा सामान खरीदना है। अब आपको किससे खरीदना है, कितने टेंडर्स आए हैं, कितने, कल को आपकी शिकायत तो नहीं होगी। और अगर विजिलेंस इंक्वायरी, आई रियली टेल यू, मेरे यहाँ मेरे टाइम में एक ऐसा अजीब केस आया था कि हमारे यहाँ हर साल न्यूज़पेपर्स की रद्दी बेची जाती थी। तो एक बार वो रूटीन में हर साल होता ही था, तो उसकी फाइल पे साइन कर देते थे। और हमारे एक सेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने फाइल पे साइन कर दिया एंड किसी आदमी ने कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने ज़्यादा रद्दी बेची है, लेकिन उससे कम पैसे, उसको कम दिखाया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी कुड नेवर थिंक कि उस पर विजिलेंस इंक्वायरी हो सकती, और उस पर विजिलेंस की इंक्वायरी हुई और उसमें इंक्वायरी में मुझे भी शामिल किया गया वहाँ से लोकल अफसर करके। और देन एनीवे आई प्रूव्ड इन डिटेल कि कौन कौन से मैगजीन्स और पेपर्स हमारे यहाँ आते हैं और उनका कितना वेट होता है। मैंने, आई रियली टेल यू, मैंने उन सबको बाकायदा वे करके, एक पेपर का वेट इतना है, इस मैगजीन का इतना, इस मैगजीन का इतना, एक महीने में इतने आते हैं तो इतना होना चाहिए। सो वी प्रूव्ड दैट द वेट वाज राइट, लेकिन उसके लिए कम से कम हम लोगों को 6 महीने लगता। सो दो इट वाज नॉट अ स्ट्रेस ऑन मी, बट द पर्सन हु साइंड द फाइल, इतना वेट था पेपर्स का, ही वाज मीन्स कंटिन्यूसली अंडर स्ट्रेस। सो इट ऑल्सो हैपन्स समटाइम। देन RTI, आई हैड बीन PIO इन माई ऑफिस, और इतनी उल्टी सीधी RTIs लोग पूछते हैं, ठीक है आप उसका जवाब दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, then they go in appeal and then they go to see and all that, वो उसमें चले जाते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो दो यू हैव ऑल द रिप्लाईज, लेकिन आपको वो सारे पेपर्स इकट्ठे करने हैं, उनकी कॉपीज बनानी है, उनकी 3-3, अगर आप में से कोई PIO होंगे तो आपको पता होगा कि 2 सेट वहाँ जमा कराने होते हैं, एक सेट आपको फ्यूचर के रेफरेंस के लिए अपने ऑफिस में रखना होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटैक्ट रखनी होती है। यू हैव टू स्टडी ऑल दिस बिकॉज एज अ PIO यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर।
तो उसमें बड़ी डिफिकल्टी होती है। कई बार मुझसे लोग मतलब हमारे ऑफिस से पूछा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में काम क्यों नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट से पूछे यार, हमसे क्यों पूछ रहा है। तो बहुत सारी आरटीआईज अननेसेसरीली लोग लगा देते हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मांगने लगते हैं। तो जो लोग आरटीआई हैंडल करते हैं, दे नो दैट इट इज रियली स्ट्रेसफुल। द नेक्स्ट इज वर्किंग अगेंस्ट विल। आप कोई काम नहीं करना चाहते, but sometimes you might have experienced in your office that you are asked to do particular thing which you don't want to do or which you don't know how to do. ये दोनों समस्याएं होती है कि आप करना भी नहीं चाहते हैं और आप करना जानते भी नहीं। तो स्पेशली इसलिए आपको वो काम दिया गया है, या जो जो स्किल्स आपके पास हैं वो स्किल्स से अगेंस्ट कुछ काम आपको दिया गया है, then again it becomes a stress on you. Then handling difficult people. When you are a boss, आपके सबऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी कहिए वो सुनते नहीं, मानते नहीं। अगर आप कुछ कहेंगे, they will go to the union, they will file false complaints against you, they will go to some other authorities. लोगों को, दूसरे लोगों, आई हैव सीन पीपल कि बाहर के ऐसे ऐसे लोगों से कह के आरटीआई डलवा देते आपके अगेंस्ट। आई हैव फेस्ड ऑल दीज थिंग्स। तो आरटीआई डलवा देते। आरटीआई का जवाब देने के लिए एक बार किसी ने एक ऑफिसर के अगेंस्ट आरटीआई डाल दी। हमें पता था किसने डलवाई, हमारे ऑफिस के कोई लोग। तो जब हमने पता किया कि इस एड्रेस से आई है, जब उस एड्रेस का पता किया हमने पोस्ट ऑफिस से, बताया कि इस एड्रेस पे तो कोई रहता ही नहीं। सो देयर आर डिफिकल्ट पीपल इन, इट इज वाइस वर्सा आल्सो, देयर आर सम डिफिकल्ट बॉसेस आल्सो। वो सब उनको वो काम देंगे, उन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि दे रिमेन इन स्ट्रेस। I don't want to mention the names of different people, so you understand that is also a problem in our offices. Work environment, physical surrounding, office layout, design, lighting, etc. बहुत से लोगों को इन्हीं चीज़ों से स्ट्रेस हो जाता है कि वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि only one person spoils the environment. फिजिकल सराउंडिंग में आपके जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, या वो बातें करते रहते हैं, आपको डिस्टर्बेंस होती है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। ऑफिस में लाइटिंग ठीक नहीं है। आपने पुराने बहुत सारे ऑफिसेज में देखा होगा जाके, आजकल तो जो ऑफिसेज की बिल्डिंग्स बन रही हैं या रिनोवेशन हो रहा है वो बहुत अच्छा है, पर पहले के जो ऑफिस पुराने आपने देखे होंगे तो देयर आर थिंग्स लाइक दैट पीपल गेट स्ट्रेस्ड। देन अगेन, जैसा मैंने पहले कहा था आपसे कि मैंने किसी से पूछा तो उसने कहा कि जॉब इटसेल्फ। तो आई आस्क्ड व्हाई जॉब इज अ स्ट्रेस। ही सेड देयर इज नथिंग मच टू डू, too much or too little to do, conflicting roles and responsibilities, badly designed shifts and rotations. तो आपको अच्छी जॉब मिली है, you are happy that you got a good job, but you have too little to do. आपको करने के लिए एज अ, जब मैं प्रोफेसर था, आई टेल यू, मेरा ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्ट में हो गया। नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी जगह थी जहाँ क्लासेज ही नहीं हो रही थी। पूरे वीक में आई हैड ओनली 2 classes, 2-3 classes पूरे वीक में। और फ्राइडे सैटरडे संडे तो कोई क्लास, सैटरडे संडे तो होती नहीं थी, फ्राइडे को भी नहीं होती। तो ओनली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एक क्लास होती थी। तो एक घंटा 2 घंटा काम होता था। तो देयर वाज नथिंग टू डू, एंड आफ्टर मतलब हाफ डे फ्री होता था, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री होता, इट्स लाइक दैट। तो क्योंकि काम ही नहीं था, तो
तो इस तरह की जब शिफ्ट्स और रोटेशंस होती हैं तो देन समटाइम्स यस समटाइम्स इट बिकम्स स्ट्रेस. मैं आई डिड नॉट टेक इट एज अ स्ट्रेस एंड आई कंप्लीटेड माय सेकंड बुक देयर. तो मैंने सोचा इतना समय है तो एक किताब लिख देते हैं. तो प्लीज़ नोट इट डाउन कि अगर ऐसा हो तो किताब लिखिए. मेरा मतलब आप जो करना चाहें कीजिए. वायलेशन ऑफ लॉस. कई बार गलती से भी आप लॉ का वायलेशन कर देते हैं. एंड यू नो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. आप को पता है कि लॉ का इग्नोरेंस, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक कोई अधिकारी थे और उन्होंने कंटिन्यूसली 2 बार गलती से उनको उनको किसी ने उनको ध्यान नहीं रहा या जो भी कंटिन्यूस 2 साल तक LTC ले लिया और ऑफिस ने भी दे दिया. बाद में जब उनकी प्रमोशन की बात आई तो उनके तब उनकी उसमें सर्विस बुक में एंट्री हुई तो प्रमोशन तो छोड़िए उनको मेमो दे दिया गया आपने 2 बार LTC क्यों लिए. सो कई बार ऐसा होता है. सो वी शुड टेक केयर दैट वायलेशन ऑफ लॉ इज अगेन causes stress in office. मेजर बिजनेस रीएडजस्टमेंट, मर्जर होता है, रिस्ट्रक्चरिंग होती है, बैंकरप्सी, रिटायरमेंट एक्सेट्रा. मर्जर होता है तो आप वहाँ दूसरे ऑफिस के साथ मर्ज हो जाते हैं. जूनियर होंगे आप, सीनियर होंगे, वहाँ के सीनियर्स हो सकता है वहाँ वो आप जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो उस पोस्ट से नीचे की पोस्ट पे आपको काम करना पड़े, या इस ऑफिस में आप बॉस थे दूसरे ऑफिस में आपको सबॉर्डिनेट होना पड़े, या रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो आप कहाँ सेट होते हैं, या कोई फर्म बैंकरप्ट हो जाती है, कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है. रिटायरमेंट पे, इवन रिटायरमेंट के टाइम पे भी बड़ी टेंशन रहती है, बड़ा स्ट्रेस रहता है. आई वॉज टॉकिंग टू अ पर्सन हु सेड के पहले दिन किसी की अगले दिन रिटायरमेंट होनी थी उसके साथ. हमारे यहाँ बैंगलोर ऑफिस में भी ऐसा ही हुआ था कि किसी ने some old typewriters were sold in कचरा बेचना था और वो टाइपराइटर बेच दिया उसने. और पता नहीं कितने दिन के बाद उनकी कंप्लेंट हो गई और अगले दिन रिटायर होना था, उससे पहले दिन उनको सस्पेंड कर दिया गया. बाद में रिवोक हो गया वो एक अलग बात है, बट इट वॉज अ ग्रेट स्ट्रेस कि आदमी पूरा लाइफ काम करके विदाउट स्ट्रेस वो रिटायर हो रहा है एंड सडनली he gets a charge of theft or fraud उसके ऊपर इम्पोज कर दिया जाए. So what will be his or her condition? Then major change in work culture, ethics and commitments. So जब वर्क कल्चर आपका चेंज हो जाता है, समटाइम यू आर हैबिचुअल ऑफ working in a different culture and some person or a super boss comes and changes the whole culture, ethics and commitments. So it really becomes difficult. I have felt it. आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा कि कई बार ऐसे लोग आपके ऊपर आ जाते हैं और हम लोगों से तो सिंस वी आर वर्किंग विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी कि वो कमिटमेंट ऐसी करनी पड़ती थी जो बड़ी डिफ़िकल्ट होती थी. आपको अगर बताऊंगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि 12:47 ऑलरेडी हो गए. अभी हमें दूसरा पोर्शन भी अपना लेना है. और चेंज इन वर्किंग कंडीशंस एंड प्रमोशन, डिमोशंस, ट्रांसफ़र, डिसमिसल. वर्किंग कंडीशन, एक वर्किंग कंडीशन में पर्टिकुलर में आप काम कर रहे हैं और उसके बाद आपकी प्रमोशन हो जाती है, यू आर ट्रांसफर्ड ऑल्सो, देन यू हैव टू वर्क इन डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस. डिमोशन हो जाती है तो आपको उस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो जाता है. डिसमिसल की तो पूछे ही मत, वो तो स्ट्रेस है ही. तो इन दीज situations also we get a lot of stress in office. And last one is career development, uncertainty or stagnation, etc.
जब आप देखते हैं कि आपको काम करते करते 20 साल हो गए, 25 साल हो गए हैं, आपके करियर प्रोग्रेशन में अनसर्टेनिटी है, स्टेगनेशन है, आप वहीं का वही काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से या 25 साल से। आई हैव सीन पीपल इतने इतने सालों से एक ही काम करते जा रहे हैं, देयर इज नो न्यू थिंग, तो उनका एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, मर जाता है, और वे स्ट्रेस में रहने लगते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू वर्क। एक ही काम करते करते बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसमें से आपका उत्साह चला जाता है, एंड स्टेगनेशन से डेफिनेटली पानी भी अगर बहते बहते रुक जाए तो उसमें स्मेल पैदा हो जाती है। सेम वे इज आवर लाइफ, अगर स्टेगनेशन आ जाए तो उसमें थोड़ी सी स्मेल पैदा हो जाती है या स्ट्रेस आने लगता है। So these are the reasons, these are causes of stress at workplace. Now, factor which create neural pathways. Neural pathways Hebbian's law है neural connection का, कि हमारे ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो एक दूसरे परमाणुओं से टकराती हैं, न्यूरॉन से टकराते हैं, एंड देन दे क्रिएट नेगेटिव और positive engrams. Neurons that fire together wire together, and neurons that fire out of sync fail to link. So they create engrams. हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया संस्कार हमारे बनाती हैं ये, ठीक है। कौन से संस्कार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, और इन संस्कारों से ही हमारा पूरा जीवन चलता है। अगर आप क्रोध आपको बार बार आता है तो आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, लोभ है तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, मोह है तो स्ट्रेस में रहते हैं, मद है तो स्ट्रेस में रहते हैं, मात्सर्य है तो स्ट्रेस में रहते हैं। मात्सर्य मतलब जेलसी, मद मतलब अहंकार। योगा साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस, S is equal to P into R. S is suffering, P is equal to pain and resistance. जब सफरिंग होता है तो जितना रेजिस्टेंस आपका होगा उतना ही आपको पेन होगा। एक सिंपल सी बात आप याद रखिए कि माइंड, योग जो है वो चित्त वृत्ति का निरोध है। माइंड इज थॉट प्लस conscious, and conscious is mind minus thoughts. अब आप हो सकता है you may say that how it can be possible mind say consciousness is mind minus thoughts. Yes, see, बहुत समय मेरे पास नहीं है, otherwise I would have explained कि we are not thoughts. अभी ब्रह्म कुमारी शायद मुझसे पहले कोई सिस्टर बोल रही थी, तो उन्होंने बताया होगा आपको कि आप थॉट नहीं है। सिंपल बात मैं आपको बताऊंगा कि आवर माइंड इज लाइक स्काई एंड आवर थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स। क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड्स चले जाते हैं, तो यू डोंट गो विद द क्लाउड्स एंड यू डोंट कम विद द क्लाउड्स, राइट। तो देखिए, मैं अलग है, हम लोग मैं से जोड़ के ना देखें, डिटेल में शायद उन्होंने बताया होगा, बट मैं एक आधे मिनट में आपको बताता हूँ। वन थिंग इज श्योर, आप ये देखिए, दिस इज ये मेरा है, ये फोन मेरा है। व्हेन आई से मेरा है, इट मीन्स मैं नहीं, दिस इज नॉट मी। सेम वे आई से ये हाथ मेरा है, सो आई एम नॉट हैंड। जैसे मैं आई एम नॉट फोन, सेम वे आई एम नॉट हैंड। मैं कहता हूँ ये बॉडी, ये शरीर मेरा है, इट मीन्स व्हाट? आई एम नॉट बॉडी, सो आई एम सोल, आई एम कॉन्शियस। सो व्हेन देयर इज नो थॉट, हालांकि जो वो सिस्टर बता रही थी कि या वो उनसे पहले जो बोल रहे थे साहब, वो कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है। आई एडमिट कि इतना आसान नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें तो हो सकता है। तो
योग में कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करना, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस इज योग, ये यही योग है। क्योंकि सेल्फ इज stress is self created, all problems are due to negative attitude and complexes in mind, can be resolved through effort, negative emotions plus defensive attitude। अगर नेगेटिव इमोशंस है आपकी एंड देन डिफेंसिव एटीट्यूड है, नॉर्मली होता है ऐसा, नॉर्मली इट हैपन। जब हम लोग कोई गलती करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब कोई गलती करता है तो हम उसको नॉट ओनली मेक ए मिस्टेक, वी ट्राई टू डिफेंड इट ऑल्सो, बट दैट इज रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, दैट क्रिएट्स रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। क्योंकि बार बार हम नेगेटिव जिस चीज़ को हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं फिर उसको डिफेंड करते हैं तो इट बिकम्स आवर वैल्यू। धीरे धीरे हमारा ब्रेन उसको ठीक समझने लगता है। हमने झूठ बोला, उसको डिफेंड किया, दोबारा किया, तिबारा किया, 4 बार किया, सो इट बिकम्स ए प्रैक्टिस इन आवर माइंड। देन नेक्स्ट वन इज रॉन्ग वैल्यू सिस्टम प्लस कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, दैट रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स, दैट बिकम्स रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों को उसकी आदत हो जाती है। सो learn to relax, relaxation, calmness. Relaxation is calmness, it is not sleeping. Honesty and hard work, plan your routine, stress and time management go together, yoga and exercise, meditation and breathing exercise, वो मैंने आपके शेड्यूल में देख लिया था, ये सब different speakers will take it up, so I am not taking it up, so I'm just running through it, just show you the slide. Then the most important thing is कि आप ऑफिस में हैं या घर में हैं, स्ट्रेस से अगर बचना है तो इट शुड बी, यू शुड लीड ए लाइफ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। आई रियली टेल यू, इट इज माय ओन एक्सपीरियंस, व्हेन यू लीड ए लाइफ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स you are always stress free most of the times, if not always, most of the times you are stress free। स्ट्रेस अगर थोड़ी बहुत देर के लिए आता भी है तो very fast you will get relieved। There is no substitute to a clean life, honest, purposeful, or pure and dedicated to high ideas, keeps the mind and body healthy। Principles from yoga and Vedanta। दो चीजें भगवत गीता में बताई गई हैं, एक अभ्यास, प्रैक्टिस, आपको पहले सेशन में बताया था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और दूसरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है कि अटैचमेंट, डिटैचमेंट, आप समझिए कि व्हेन यू गेट डिटैच्ड विद द थिंग्स। तो आप कोई काम कर रहे हैं, आपने काम कर दिया, ठीक है, डोंट गेट अटैच्ड विद इट, नहीं तो आपको स्ट्रेस आने लगता है। नाउ 3 powerful ideas from Vedanta for mind control। I am the Atma separate from body and mind, जो अभी मैं आपको बता रहा था, am I aware of body, mind, or are they aware of me? और when there are no thoughts, still I am। ये थोड़ी जो बातें हमने 2 मिनट पहले की थी। कर्मयोग, सकाम, morality, decency, clean life, निष्काम, no expectation। हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का रीज़न है हमारी एक्सपेक्टेशंस। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, उतना ही हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं दैट ऑलवेज एवरीबडी विल बी fulfilling our expectations। Then bhakti yoga, love, faith, emotions, I think that sister might have Raj Yoga, told about your Raj Yoga and Dhyan, so I don't see and seen that you should become a seer, दृष्टा। आपको सिर्फ देखना है जो कुछ हो रहा है आपके सामने, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू जस्ट वॉच इट। कभी फिर समय मिला तो हम लोग आपसे इसके बारे में बात करेंगे। विवेकानंद told 3 suggestions were that convincing in the power of goodness,
conviction, sorry, conviction is the power of goodness. Either you are at your workplace or you are at your home. Conviction in the power of goodness. You should believe it, because when you believe in goodness, then it reduces your stress. Absence of jealousy and suspicion. Suspicion, Vivekananda says, suspicion is death. And not to be jealous. अगर आपके ऑफिस में किसी को प्रमोशन मिल रही है, कुछ और मिल रहा है, it's okay. You also try, but don't get jealous. If you get jealous, only you are creating stress for you. कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है. Then doing good and trying to be good and helping those who are trying to be good. This is very important. Doing good, trying to be good and helping those who are trying to be good. So this is very important. अगर आप ये करते हैं तो आप अपना नहीं दूसरों का भी स्ट्रेस कम कर देते हैं. Handling stress at the workplace. Now, next 15 minutes we'll spend here. One thing is track your stressors. पहले वो मैडम जो कह रही थी कि स्ट्रेस और इरिटेशन में का रिलेशनशिप की बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि हम लोग भूल जाएं. देखिए, इरिटेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्ट्रेस. जब आप किसी व्यक्ति से समटाइम्स इट हैपन्स कि अननेसेसरीली यू गेट इरिटेटेड. कोई आदमी आपको अच्छा नहीं लगता है. दिस इज बिकॉज ऑफ योर, जो मैंने पहले कहा कि आपके संस्कारों की वजह से होता है. कि आपकी वैल्यूज अलग हैं, दूसरे आदमी की वैल्यूज अलग हैं. बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट लाइक दैट पर्सन. और कभी कभी आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि वाई वी गेट इरिटेटेड. समटाइम्स यू डोंट नो वाई यू आर गेटिंग इरिटेटेड. देखिए, आपने देखा होगा कि जितनी भी कॉर्पोरेट, मैडम आप सुन रही हैं ना जो मैडम ने पूछा था ये बात? हेलो ओके, जो भी था. तो मैं ये कह रहा था, आपने देखा होगा जितनी कॉर्पोरेट की मीटिंग्स होते हैं, आपके ऑफिस में मीटिंग होती है, एक ड्रेस कोड होता है. नॉर्मली पीपल वेयर white shirt, black pant, or navy sky blue shirt, navy blue or navy blue suit. I used to use that. This is very much psychological. Reason ये है कि white and sky blue are two non-controversial colors. मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कई बार हम लोग इरिटेट हो जाते हैं. सपोज हम सबका एक ऑरा होता है और हमारे ऑरा में बहुत सारे कलर्स होते हैं. जो कलर हमारे ऑरा में नहीं होता है वो हमें इरिटेट करता है. सपोज आई डोंट हैव अ रेड कलर इन माय ऑरा. मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, आई एम कंडक्टिंग एन इंटरव्यू. अ कैंडिडेट कम्स wearing red shirt or red suit. I will automatically get irritated. Even I don't know why I am getting irritated. मुझे उसके जवाब अच्छे ही नहीं लग रहे. Though he is giving all correct answers, but I am not like, I am getting irritated. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो संस्कार होते हैं या हमारा ऑरा जो होता है उसकी वजह से और दूसरे व्यक्ति के ऑरा से मैच नहीं करता है, वी गेट इरिटेटेड. तो और इरिटेटेड होते हैं तो फिर हम उससे बात नहीं करना चाहते, हम उससे अलग रहना चाहते हैं. दैट पुट्स स्ट्रेस ऑन अस. तो उससे हमें स्ट्रेस आता है. सो जब भी ऐसा हो या कोई भी ऐसी बात हो, आपके ऑफिस में स्ट्रेस आता है, तो ट्रैक योर स्ट्रेसेस. कब कब ऐसा होता है उसको नोट कीजिए. सप्ताह में कितनी बार हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था. जब आप ये करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा. आप उसको नोट करने लगेंगे तो उसको ठीक करने के रास्ते भी आपको मिलते जाएंगे. ओके, देन डेवलप हेल्दी रिस्पॉन्सेस. एक्सरसाइज, योगा, वॉक्स, रीडिंग, प्लेइंग, गुड स्लीप.
हेल्दी रिस्पॉन्सेज। जब भी स्ट्रेस हो, अच्छा म्यूजिक सुनिए, कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, कुछ कॉमेडी सीरियल्स देखिए, कुछ खेलिए, या थोड़ी देर सो जाइए। मेरे एक रिलेटिव है, वो मुझे बताते हैं कि जी मुझे जब बहुत गुस्सा आ जाता है तो मैं सो जाता हूँ। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। मैंने तो सुना है लोगों को गुस्सा आता है तो सोते ही नहीं। सो डिपेंड्स। सो आपको हेल्दी रिस्पॉन्सेस यूज करने चाहिए। आप एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताई होंगी तो, या मैं जो करता हूँ, कभी ऐसा होता है तो आई स्टार्ट रीडिंग और राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग योर एक्सपीरियंस। तो दैट इज़ रियली फनी थिंग। आप 2 दिन के बाद उसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आप क्या सोच रहे थे, कैसे सोच रहे थे। एस्टेब्लिश बाउंड्रीज वर्किंग यूजिंग गैजेट्स। अपनी लिमिट तय कीजिए, मुझे इतनी देर काम करना है, इतना काम करना है, मुझे इतनी देर गैजेट्स यूज करने हैं। आपको मालूम है आजकल ये भी एक स्ट्रेस हो गया हम लोगों के लिए। कौन कौन से बुक पढ़ने की बजाय हम फेसबुक पे पहुंच गए हैं। उस बुक में कोई फेस होता नहीं। तो यूजिंग गैजेट्स हैज बिकम अ स्ट्रेस नाउ। मैंने देखा है, इवन कभी कभी मैं भी करता हूँ शायद, ये कुछ देर से फोन नहीं देखा है तो फोन उठा के अननेसेसरी देखने लगते हैं हम लोग। तो आपको शायद आप पेपर्स में आपने पढ़ा होगा कि जब ये धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो जाती है तो इट कॉजेज स्ट्रेस। तो उसको हमें कम करना चाहिए। हमें एक ऐसा कर लेना चाहिए कि 1 घंटा एक परिवार के साथ बैठे हैं तो गैजेट फ्री रखिए, या ऑफिस में आपको लंच टाइम है तो उसको गैजेट फ्री रखिए। या उसमें आप काम ऑफिस की बातें मत कीजिए, कुछ और हेल्दी टॉपिक्स पे बातें कीजिए। दैट यू कैन डू। टेक टाइम टू रिचार्ज। आप किससे रिचार्ज होते हैं आपको पता है। सो स्टार्ट डूइंग दोज एक्सरसाइजेस। अगर आपको लगता है कि पढ़ने से आप रिचार्ज हो जाते हैं, यू कैन हैव अ 10 मिनट्स नैप इन द ऑफिस इवन। तो अगर उससे रिचार्ज हो जाते हैं जस्ट, क्योंकि मैं ऐसा करता था कि खाना खाने के बाद 15 मिनट में, आधे घंटे का आपका लंच होता है, 15 मिनट में खाना खाया एंड इमीडिएटली आई यूज टू हैव ए नैप फॉर 10 मिनट्स एंड गेट रिचार्ज। तो यू शुड ऑलवेज टेक टाइम टू रिचार्ज योरसेल्फ। देन लर्न हाउ टू रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब सोना ही नहीं, रिलैक्स का मतलब आपका माइंड शांत होना चाहिए। या वो ब्रीदिंग से हो, या मेडिटेशन से हो, या स्लीपिंग से हो, या म्यूजिक से हो, anyhow you can do that. If you start doing relaxation exercises, then of course you can sometimes people say that we want to go on a vacation for recharging or for relax. But vacation sometimes, most of the time, it's a change of place only. क्योंकि आप उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं परिवार के लोगों के साथ, उन्हीं समस्याओं के साथ, उन्हीं झगड़ों के साथ, उन्हीं एटीट्यूड्स के साथ you are going on a vacation. So that doesn't relax you. So relaxing is something else. जहाँ आपका पूरा calmness हो आपके माइंड में. Then next is talk to your boss or subordinate, as the case may be. अगर आपको बॉस से प्रॉब्लम है, just go and talk. आप उनसे पूछिए कि what is my mistake. अगर कोई मिस्टेक आपसे हो गई है, just accept it. कोई दिक्कत नहीं है, उसको करेक्ट कीजिए. देखिए ये कमजोर लोगों का काम नहीं होता है, ये बहुत हिम्मत वाले लोगों का काम होता है, that to accept your mistake and correct it. So same thing happens with your subordinates also. आपके सबऑर्डिनेट से, we are human beings, गलतियां हो जाती हैं. अगर सबऑर्डिनेट से कोई गलती हो गई, आप अपने घर में भी तो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं.
अपने सबॉर्डिनेट्स को ऐसे ही ट्रीट कीजिए जैसे आपके बच्चे हैं। टॉक टू देम, अपने अपने पास रखिए, अपने पास बिठाइए, उनको टच कीजिए, प्यार से बोलिए। टच कीजिए का मतलब उनकी पीठ थपथपाइए। ऑफ कोर्स मैं आगे और बात करूंगा कि ऐसा उसमें मेल फीमेल का ध्यान रखिए। देन गेट सम सपोर्ट फ्रॉम, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस्ड है, तो ऑफिस में भी आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ वेल विशर्स होंगे, आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, उनसे जिससे भी आपको लगता है कि उससे बात करने से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, टॉक टू देम, गेट द सपोर्ट एंड डिस्ट्रेस योरसेल्फ। दैट्स अ गुड एक्सरसाइज, आई टेल यू। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों को स्ट्रेस होता है, वी डोंट टॉक टू एनीबॉडी, और वो तब ज़्यादा हो जाता है। वो हमारे आप देखिए, अगर कोई अच्छी बात हो जाती है ना हमसे, तो हम लोग सबको बता देते हैं, वी ट्राई टू टेल एवरीबडी आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वी कीप इट इन माइंड। सो रॉन्ग थिंग्स वी कीप इन माइंड, गुड थिंग्स वी थ्रो आउट। सो wrong things, wrong things, wrong things, wrong things, and we made a dustbin of our mind. So every time we are under stress, so don't do this. जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस्ड है, गेट सम सपोर्ट। एथिकल प्रैक्टिसेस, जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे, एथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। सी, पीपल मे enjoy life who earn money with unethical ways, but people who use ethical ways sleep nicely, sleep nicely. And मैं तो इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 9 बजे के बाद मैं, अगर बहुत ज़रूरी कोई काम नहीं है तो जागता हूँ। इवन हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी कहते थे कि शर्मा जी तो 9 बजे फ़ोन बंद करके सो जाएंगे। आई यूज्ड टू स्विच ऑफ माई फोन एंड स्लीप, एंड आई स्लीप विद इन 5 मिनट्स, लेटते ही सो जाता, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राइड एथिकल प्रैक्टिसेस। तो ये बहुत यूजफुल है। थॉट ऑफ राइटियसनेस, सही सोचिए, सही दिशा में सोचिए। अगर आप सही दिशा में सोचेंगे, आपकी सोच सही होगी, तो देयर विल बी नो स्ट्रेस, राइट? No lust for money. See, money is important. We should have money. Money is a requirement. हम लोगों के पास होना चाहिए। इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि हमारा काम चलता रहे। जितने हमारी सैलरी मिलती है, हम चाहें तो ओवर टाइम करें, जितना मेहनत से जितना कमाएं, लेकिन लस्ट नहीं होनी चाहिए। लस्ट का मतलब अनएथिकल वे से, देखिए, money can give you best of food, but cannot guarantee digestion. Money can give you best of food, but cannot give you hunger. Money can get you best beds for the world, but money cannot get you sleep. आपको अच्छे से अच्छी चीज मिल सकती है, लेकिन money can buy you a very good bungalow, very good house. Money cannot make it a home. तो ये बात याद रखिए। इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, और बहुत चीज़ों के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे पागलपन से भागना, आई थिंक इट क्रिएट्स स्ट्रेस, दैट शुड बी अवॉइडेड। देन IQ, EQ and SQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, इमोशनल कोशेंट एंड स्पिरिचुअल कोशेंट। पहले IQ समझते थे कि IQ जिसका अच्छा है वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट है। नाउ देन अनदर कंसेप्ट केम ऑफ EQ, इमोशनल कोशेंट। क्योंकि जब आप इमोशनली जुड़े होंगे, आप देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो जैसे हमने बात की पैसे से आ सकती हैं। यू कैन tell me 100 things which you can buy with money, but I can tell you 1,000 things which money cannot buy. And
which can give comfort in life. इसलिए आप अपने घर में आपको लोग आपके परिवार के लोग, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड आपको प्यार करते हैं इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा है। तो प्यार एक ऐसी, लव एक ऐसी इमोशंस है ना, फ्रेंडशिप है, लव है, आपस की रिलेशनशिप है, बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो आपको डिस्ट्रेस करते हैं। एंड देन एस्क यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जो आपको बताया होगा मेरे से पहले आने वाले स्पीकर्स ने, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल होना बहुत ही ज़रूरी है। कभी इस विषय पे बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। देन मेल फीमेल डिसेंसी इन ऑफिस, बिहेवियर, कन्वर्सेशन, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर धनेशु लोष्टवत, पर दारेशु मातृवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए और दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान समझना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी आयु के अनुसार यदि आपकी पत्नी के अलावा या आपके पति के अलावा जो भी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, आप साथ में प्रोजेक्ट कीजिए, साथ में उठिए, बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाइए, सब कुछ कीजिए, बट विद डिसेंसी। तो वो तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी आयु के अनुसार उनको अपनी माँ, बहन या बेटी के समान सम्मान दीजिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मी टू चला है ना, आई डोंट नो हाउ मेनी हेड्स विल रोल, वो वहीं से शुरू हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मेल फीमेल डिसेंसी का अपने ऑफिस में ध्यान रखें और इस तरह से हमारा स्ट्रेस कम होगा। Some more suggestions, ये तो हमने sweetness in family and social relations, put anchors on your sense organs। आप ऑफिस में भी रहें तो अपने सेंस ऑर्गन्स पे सेंसर एंकर रखिए। आपके पास 2 कान है, सुनिए, लेकिन किसी की बुराई हो तो मत सुनिए। इसी तरह आपकी आंखें हैं, आपको देखने के लिए दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करेंगे, ठीक है। आपको नाक है, सूंघने के लिए है, अच्छी चीज़ें, खाना आप खाते हैं, अपनी स्मेल लीजिए, लेकिन दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, डोंट स्मेल रैट्स इन दैट, राइट। एंड देन लास्ट वन इज स्माइल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। ये याद रखिए कि जब आप हंसते हैं तो आप भगवान को देखते हैं, और जब आप किसी को हंसाते हैं तो भगवान आपको देखता है। ईगो को छोड़ दीजिए, तो क्योंकि जब आप ईगो रखते हैं अपनी ऑफिस में खास तौर पे, दैट ईगो का मतलब होता है एज गॉड आउट, देन यू एज गॉड आउट ऑफ योर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Is there any question? Participant, is there any question? भूख लगी है मैडम सबको, सब खाने के चक्कर में। So participants, अगर क्वेश्चन है तो पूछिए, otherwise we should thanks to Pradeep Sharma sir. So thank you very much sir. Thank you very much sir, and once again really we are grateful that you have spared your time for this session. Thank you sir. Thank you. And Yes, we have one question.